میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ایسی شخصیت کے تعلق سے ہے جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں دعا کیا تھا اپنے رب سے کہ اے اللہ تو اسے مسلمان بنا دے، ایمان میں تو اسے داخل کر دے۔ ایسی شخصیت کا تذکرہ انشاءاللہ میں کروں گا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کے چہرے میں جو ہے کہ مسکان آ گئی تھی، مسکراہٹ جو ہے کہ ظاہر ہو گئے تھے اور کفر کے حلقے میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جو ہے کہ ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کون تھے، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، انشاءاللہ آج ہم یہی بتائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق رکھا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے تمیز دلانے والا، فرق کرنے والا، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان جو ہے کہ بڑے خوش تھے اور کفر کے حلقے میں تہلکہ مچ گیا تھا اور وہ پریشان ہو گئے تھے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بڑے جلالی قسم کے آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا یہ کیسے ہوا آگے ذرا دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں قتل کے ارادے سے کہ آج ہم اس آدمی کو قتل کر دیں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آج ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ننگی تلوار لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ کی گلیوں سے نکلتے تھے تو مکہ کے لوگ جو ہے کہ گھروں سے باہر آ کر گھر کے دہلیز میں کھڑے ہو جاتے تھے عمر کے جلالی چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ ایسا چہرہ تھا، بڑے غصے میں تھے۔ ایک موحد شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بڑے غصے میں کہا کہ آج میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آج جو ہے کہ میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، آج ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس موحد مسلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ چیز کو سنتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ارادہ ترک کر دیتے ہیں اور بہن کے گھر جو ہے کہ واپس جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہن کے گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے قرآن کی آیتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اندر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کیا سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے اس نئے نبی کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ کہا کہ ہاں، اتنا کہنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، پوری طرح سے مارنے لگتے ہیں۔ بہن سامنے آ جاتی ہے کہتے ہیں اے عمر جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب میرے شوہر کو تم مار نہیں سکتے ہو، یہ میرے شوہر ہے، تم جو کر لو چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، لیکن اب ہم دین سے نہیں پھر سکتے ہیں، چاہے جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کچھ دیر کے لیے سہم گئے کہ آخر وہ میری بہن جو میرے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی، میری نظر میرے سامنے کھڑی ہو کے بات کرنے کی
नहीं रखती थी, आज वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। आखिर बात क्या है? कौन सी दौलत इन्हें मिल गई है? वो पूछते हैं कि वो दौलत कौन सी है जिसकी वजह से आज तुम आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो, बताओ। बहन कहती है कि ठीक है हम बताएंगे, लेकिन पहले तहारत हासिल कर लो, पाकी हासिल कर लो। पाकी हासिल करने के बाद बहन जो है तिलावत करती है, सूरह ताहा की चंद आयतों की तिलावत करती है। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जो है कहते हैं कि हमें तुम्हारे नबी से मिलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे आज़म के सहाबाए किराम के साथ दीन की बातें कर रहे थे। फौरन पहुंच जाते हैं ये तीनों बहन बहनोई और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला पहुंच जाते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन कहते हैं? उमर। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम जब उमर की ये आवाज सुनते हैं कि उमर इतना सुनना था, सहाबाए किराम सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि आज उमर अगर गलत इरादे से आया है तो आज उसकी खैर नहीं, और अगर सही इरादे से आया है तो ठीक है। उसके बाद उसी मजलिस में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, ये भी जलाली शख्स थे। उन्होंने तलवार को म्यान से निकाला, कहा कि आज हम उमर को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये दरवाजे को खोलते हैं, वो उमर जिसका चेहरा हमेशा जो है कि उठा हुआ रहता था, आज उनका चेहरा झुका हुआ था। सहाबाए किराम उमर की तरफ देखते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उमर किस इरादे से आए हो? उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी आपके करीब हैं, लगता है ऐसा कि मैं आपका गुलाम हो गया हूँ। उमर आज इस्लाम कबूल करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल कराते हैं, कलमा पढ़ाते हैं और सहाबाए किराम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद जो है कि जब कुफ्र यानी काफिरों को पता चलता है कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये बात जंगल के आग की तरह फैल जाती है। लोगों में जो है कि पूरी बात फैल गई कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया तो जो है कि इनके बारे में आता है कि अगर इस्लाम की तारीख से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का नाम निकाल दिया जाए तो इस्लाम की तारीख अधूरी पड़ जाएगी। ऐसी शख्सियत, अल्लाह अकबर। कैसे थे कि अगर इनका नाम निकाल दिया जाए तो इस्लाम की तारीख अधूरी पड़ जाएगी। मेरे भाई ऐसी शख्सियत के हामिल थे। यही नहीं और आगे आगे तो पता चलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इज्जत किया करते थे, क्या इज्जत देते थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कुछ सहाबाए किराम बैठे हुए थे। बुखारी की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हदीस वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम लोग बैठे हुए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इरशाद फरमाया कि आज की रात मैंने ख्वाब देखा, मुझे जन्नत की सैर कराई गई, मैंने जन्नत में एक महल देखा, इतना खूबसूरत महल था, इतना खूबसूरत महल था कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं महल में दाखिल हो जाऊं। महल में दाखिल होने को जी चाहा। मैंने फरिश्तों से पूछा ये महल किसके लिए बनाया गया है? बताया गया ये महल उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बनाया गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा जी चाहा कि मैं दाखिल हो जाऊं उस महल में, लेकिन उमर की गैरत मुझे याद आ गई और मैं उल्टे पांव पीछे हट गया। अल्लाहु अकबर। क्या इज्जत करते थे। यही नहीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में शामिल थे, रोने लगते हैं कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे कहते हैं मैं कैसे आपसे गलत कर सकता हूं, ये आप क्या कह रहे हैं? रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमर मुझे गैरत आती है तुम पे। अल्लाहु अकबर। ये इज्जत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे मेरे भाई। यही नहीं, सबसे बड़ी इज्जत तो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि रावी हदीस हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद नबियों का सिलसिला जारी रहता, नबियों का सिलसिला बंद ना होता। मेरे बाद अगर कोई नबी बनाए जाते तो वो उमर होते। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मेरे बाद किसी को नबी
बनाया जाता तो वो उमर होते। अल्लाह अकबर, ये इतनी बड़ी शख्सियत के हामिल थे मेरे भाई, ऐसे थे। यही नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें थी जो कि किसी मसले पे बात कर रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे मसला। इसी दौरान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर अंदर आने की इजाजत मांगता है। इतना कहना था, ये आवाज कुरैश की औरतों के कानों तक भी पहुंच गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं, इतना सुनना था। औरतें जो है कि छूट गई उमर रज़ी अल्लाह तआला के डर से, भाग गई वहां से। और उमर रज़ी अल्लाह तआला जब अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आपको हंसता हुआ खेलता हुआ आपको रखे, आप ऐसे ही हंसते रहे। लेकिन एक बात बताइए, हंसने की वजह क्या है, आप क्यों हंस रहे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, क्या बताऊं, तुम जब नहीं आए थे उससे पहले कुछ औरतें बैठी हुई थी, किसी मसले पे बात हो रही थी, तुम्हारे आने की आवाज को सुनकर औरतें तुम्हारे डर से भाग गई। अल्लाहु अकबर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं क्यों भाग गई, वजह क्या है, मेरे डर से क्यों भाग गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, जिस आदमी के डर से शैतान अपना रास्ता बदल लेता है, ये यानी सख्ती का ये आलम है कि शैतान भी नहीं टिकता है उस आदमी के सामने, शैतान रास्ता तब्दील करने पे मजबूर हो जाता है। उस आदमी के सामने कुरैश की औरतें कैसे टिक जाती? अल्लाह अकबर। ये जलाली शख्सियत थे मेरे भाई, सख्ती का ये आलम था। ऐसे थे जब मक्का की गलियों से निकलते थे तो लोग देखने में मजबूर हो जाया करते थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे थे। तो कहते हैं कि शैतान भी रास्ता बदल लेता है, शैतान भी भागता है तुम्हारे डर से, तो मजाक है कि ये औरतें तुम्हारे सामने टिक जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उमर रज़ी अल्लाह तआला सर नीचे कर लेते हैं। और आगे आइए, पता चलेगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की इज्जत सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कितनी थी। जरा देखिए, अभी तक इस्लाम की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, किसी सहाबी के बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल नहीं किया था। ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयतों का नुज़ूल करता है। कैसे? जरा देखिए, हजरत शरहबिन रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा ख्वाहिश जाहिर की कि ए अल्लाह, शराब के ताल्लुक से कोई वाज़ेह दलील नाज़िल कर दे जिससे ये पता चले कि शराब हलाल है या हराम है, कोई वाज़ेह दलील नाज़िल कर दे। ये ख्वाहिश जाहिर की थी, दुआ कर रहे थे अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 119 नाज़िल करके फरमा दिया कि अगर ए नबी आपसे कोई शराब के ताल्लुक से सवाल करें तो उनसे बता दो कि शराब में तुम्हें जो फायदे नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। इस शराब से बचो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुतमईन नहीं हुए कि नहीं, हराम है या हलाल है अभी वाज़ेह नहीं हुआ है। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कोई वाज़ेह दलील नाज़िल कर दे जिससे पता चल जाए कि हलाल है या हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 43 नाज़िल किया, आयत नंबर 45, और कह दिया कि जब तुम शराब के नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब तक मत जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि नहीं, अल्लाह कोई वाज़ेह दलील नाज़िल कर दे जिससे पता चल जाए कि हलाल है या हराम है। बार बार दुआएं कर रहे हैं, ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। तीसरे मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा की आयत करीमा नाज़िल कर दी कि इन्नल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान। ये शराब जो है ये गंदे काम है, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो ये काम छोड़ दो। पता क्या चला, शराब पियोगे तो कामयाब नहीं,
कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, नशे वाली चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे मरहले में नाजिल कर दिया कि मुकम्मल तरीके से ये हराम है। अल्लाहू अकबर, ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, अल्लाह आयतों का नुज़ूल करके जा रहा था। एक मर्तबा ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे भी लोग आते हैं, काश कि आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दे देते। इतना कहना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच ही रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा का नुज़ूल कर दिया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। ए नबी, आप अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को और मोमिना औरतों को कह दीजिए जब घर से बाहर निकले तो चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत कैसी थी कि ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख्वाहिश के मुताबिक जो है कि आयतों का नुज़ूल कर रहा है। ऐसी शख्सियत, यही नहीं और आगे आगे तो आपको पता चलेगा कि फैसले को बदलना पड़ा कैसे, और आगे आगे जंग बदर का मौका आप जानते हैं। जंग बदर में मुसलमानों को फतह से हमकिनार हुआ था, मुसलमान जीते हुए थे और मुश्रिकीन में से 70 लोगों को कत्ल किया गया था, वो 70 गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तार जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कैद किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया सहाबाए किराम से। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा तलब किया कि अबू बकर तुम्हारा क्या मशवरा है, इन लोगों के साथ क्या किया जाए जिन लोगों ने मुसलमानों को सताया, मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों को कत्ल करने के इरादे से आए हुए थे, इन लोगों के साथ क्या किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने रहमदिल थे, इससे ज्यादा रहमदिल सहाबाए किराम में और कोई नहीं थे। इतने रहमदिल, वो कैसे इजाजत दे देते कि इन्हें मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ फिदिया लेकर, एवज में कुछ ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए, ये मेरा मशवरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है। अब बारी आई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, अपने तो जलाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर तुम्हारा क्या मशवरा है। कहते हैं अल्लाह के नबी क्या पूछते हैं, इन लोगों को मार दिया जाए, इन लोगों को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है, जिंदा रहने का हक ही नहीं है, मेरा यही मशवरा है कि इन लोगों का जो है कि कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, दोस्तों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, दुश्मनों के लिए भी रहमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के मशवरे को कबूल कैसे करते कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को कबूल किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए कुछ फिदिया लेकर। ऐसा ही उन लोगों को छोड़ दिया गया फिदिया लेकर, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 67 नाज़िल करके वाज़ेह कर दिया कि मेरे नबी, मुनासिब तो ये था कि उन कुफार को, उन लोगों को अच्छी तरीके से कत्ल कर देते ताकि दोबारा ये लोग हमले की सकत न रखते। इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं, वो भी रोने लगे, दोनों रो रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आते हैं, अल्लाह के नबी बात क्या है, आप दोनों क्यों रो रहे हैं, वजह बतलाइए। मैं भी अगर ऐसी बात होती तो उमर भी रोने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा पढ़ी, कहा कि उमर, काश कि तुम्हारे मशवरे को हम मान लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, आज हमें रोना नहीं पड़ता, काश कि तुम्हारे मशवरे को मान लेते। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसे थे मेरे भाई, ख्वाहिश जाहिर करते थे सिर्फ, और अल्लाह तबारक व तआला आयतों का नुज़ूल करता था। तो कहने का माना ये है कि आप भी जो है कि अपने आप को ऐसा बनाए कि जो है कि यानी शिर्क से बचें, तौहीद के ऊपर चलें और जो है कि अपने आप को नमाज, रोजा, ऐसी तमाम चीजों का पाबंद हम बनाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं सुने।
یہ ہوتا ہے میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی یعنی خواہش ظاہر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ آیتوں کا نزول کر دیتا تھا. یہی نہیں اور آگے آگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سعید ابن عامر کو حمص کا گورنر بنا دیا. شہر حمص کا گورنر سعید ابن عامر کو بنا دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حمص پہنچتے ہیں اور حمص کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جس آدمی کو میں نے گورنر بنایا ہے ان سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ شکایت ہی شکایت ہے. آپ نے جسے سعید ابن عامر کو گورنر بنایا ہے شکایت ہی شکایت ہے. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد وہ لوگوں کی شکایتوں کو نہیں سنتے ہیں، جبکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ فجر کے فوراً بعد لوگوں کی شکایتوں کو سنا جائے. یہ شخص فجر کے بعد نہیں، سورج نکلنے کی کافی دیر کے بعد اپنے کمرے میں آتے ہیں اور لوگوں کی شکایتوں کو سنتے ہیں. یہ پہلی شکایت ہے. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی رکھتے ہیں، جبکہ چھٹی کا کوئی اعلان آپ نے کیا ہی نہیں ہے، یہ ایک دن چھٹی رکھتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ جب رات میں ان کے پاس کوئی ضرورت مند پہنچتے ہیں تو یہ کسی کی سوال کو نہیں سنتے ہیں، یہ اگنور کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ انہیں بیوی کے دورے پڑتے ہیں اور جب ان سے علاج کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ میری بیماری لا علاج ہے، یہ میری بیماری لا علاج ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سعید بن عامر کو بلاتے ہیں کل، کہتے ہیں کل صبح آپ جو ہے کہ سب کے سامنے آپ آئیے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات میں تہجد کی نماز میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے بہت غور و فکر کے بعد اس آدمی کو سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنایا تھا. اللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. اللہ میں نے اس کو پسند کیا تھا. اللہ میں نے پسند کیا تھا. اللہ تو بھی اسے پسند کر لے. اللہ کل اس کے پاس شکایتوں کا جو جواب ہونا چاہیے وہ معقول ہونا چاہیے. صبح جو ہے کہ سعید بن عامر کو پیش کیا جاتا ہے. سعید بن عامر سے سوال کیا جاتا ہے کہ سعید بتاؤ تم فجر کے فوراً بعد لوگوں کی شکایتوں کو کیوں نہیں سنتے ہو؟ سورج نکلنے کے بعد کیوں سنتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا تھا، لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے گورنر سے بنا دیا، لیکن میری خدمت کے لیے آپ نے کوئی غلام مجھے نہیں دیا ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ پیر سے معذور ہے، آنکھ سے اندھی ہے. میں جب فجر کی نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ سے ناشتہ بناتا ہوں اور اپنی بیوی کو ناشتہ کراتا ہوں. یہ کرانے میں جو ہے کہ مجھے دیر ہو جاتی ہے اور وقت لگ جاتا ہے. اس کے بعد سورج نکل آتا ہے. اس کے بعد جب میں کمرے میں پہنچتا ہوں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ یہ میں نے جو کیا ہے کیا یہ غلط ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تم نے میرے فیصلے کی لاج رکھی، اے اللہ یہ معقول جواب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں دوسری شکایت کی جائے. دوسری شکایت پیش کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ ہی بتائیے یہ جو میرے جسم کے اوپر کپڑا ہے یہ ایک ہی کپڑا میرے پاس ہے اور یہ اتنا موٹا کپڑا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اس کپڑے کو جب میں دھوتا ہوں سوکھنے میں وقت لگ جاتا ہے. اس دن میں ساری نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں، اس لیے لوگوں کی شکایتوں کو نہیں سن پاتا ہوں. ایک دن میں اس لیے چھٹی رکھتا ہوں. تیسری شکایت کی جاتی ہے کہ رات میں ضرورت مند تمہارے پاس آتے ہیں، ان کے سوال کو کیوں نہیں سنتے ہو؟ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ دن میں جو ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں لوگوں کی شکایتوں میں لگ جاتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں لوگوں کی شکایتوں میں لگ جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھتا ہوں لوگوں کی شکایتوں میں لگ جاتا ہوں. امیر المومنین صرف فرائض ادا کر جاتا ہوں، نوافل ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. رات میں اس لیے لوگوں کی شکایتوں کو نہیں
बोलता हूँ, इसलिए कि दिन में अपने लोगों को खुश करता हूँ, रात में रूठे हुए रब को मनाने की कोशिश करता हूँ। मैं काफी रात तक नवाफिल अदा करते रहता हूँ ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं अपने बंदों का भी हक अदा करूँ और जो है कि अपने रब को भी मनाऊं। इसलिए मैं रात में लोगों की शिकायतों को न सुनता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो जाते हैं, कहते हैं लेकिन आखिरी शिकायत ये है कि तुम कहते हो कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उस मिर्गी के दौरे का कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं, तुम ये कैसे कह सकते हो? कहते हैं जब बात आ गई है तो ये भी मैं बता ही देता हूँ। बात ये है कि आप जानते हैं कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त में मुसलमान नहीं हुआ था, मैंने उनको काफिरों के साथ था और जब उनको गिरफ्तार करके सूली पे लटकाया जा रहा था तब भी मैं उन लोगों के साथ था। सूली पे लटकाने से पहले हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में नेज़ा मारा गया था, तब भी मैं साथ था। अमीरुल मोमिनीन, जब नेज़ा मारा जा रहा था उस वक्त जो मैं साथ था, लेकिन साथ था और नेज़ा मारने वाला कोई और नहीं, वो मैं ही था। और खुबैब का मंजर जब मेरे सामने आता है, जब मैंने नेज़ा मार दिया था उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते मुस्कुराते सूली पे चढ़ गए थे। वो मंजर जब मेरे सामने आता है, जब वो सूली पे चढ़ के गिर गए थे, लड़खड़ा रहे थे, वो मंजर जब मेरे सामने आता है, अल्लाह की कसम में बेहोश हो जाती हूँ, अल्लाह की कसम में बेहोश हो जाता हूँ और जमीन पे गिर पड़ता हूँ और जो है कि मैं खड़खड़ाने लगता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, लेकिन मोमिनीन मुझे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। वो खुबैब का मंजर मुझे जब याद आता है तो मुझे ऐसा ही लगता है। अब आप ही बताइए कि इस बीमारी का क्या इलाज है? इस बीमारी का इलाज तो ये है कि मैं खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भूल जाऊं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल जाऊं? अल्लाह अकबर, इस मंजर को हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं, कहते हैं कि सईद इब्न आमिर तुमने बड़ा अच्छा सौदा किया, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। सारे के सारे लोग खामोश हो गए थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले को लेकर कि बड़ा अच्छा फैसला किया है। तो ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत थी मेरे भाई। ऐसे थे, लोगों के बीच में जब जाते थे तो एक दबदबा कायम होता था। सहाबा-ए-किराम में या कुफार मुशरिकीन में जब भी खलबली मचती थी, जब भी कुछ होता था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक नहीं आते थे, लोग उस रास्ते की तरफ हजार बार देखा करते थे कि उमर कब तक आएंगे, उमर कब तक आएंगे। भले खामोश रहे लेकिन उमर कब तक आएंगे। अल्लाहु अकबर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस जगह पे आ जाया करते थे तो जो है कि पूरा मजमा जो है कि खामोश हो जाया करती थी, सब खामोश हो जाते थे और सबकी नजरें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर टिकी रहती थी। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे मेरे भाई, इतने जलाली और इतने सख्त दिल इंसान थे मेरे भाई। फैसले भी करते थे तो धड़ाले से करते थे, कुछ भी करते थे तो फौरन कुरान और हदीस को सामने रख के वो ये फैसले किया करते थे।